Hello, good morning students. As you know, in last lecture we discussed all basic terms of polynomials, required all quantities also for expansion as well as factorization also, and some important rules. Now we going to start a exercise. Okay, first exercise is very simple. Whatever you studied in previous lecture, that everything to be used here. In first exercise, whatever you can see on the screen, that is very simple. Just observe the question well, understand it well, whatever asked, and then give answer directly, because no calculation is required, because it is very basic related to all terms, okay, that we already discussed. Now look at the first one. Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. So you understand what is the meaning of the instruction? They want to get answer whether it is a polynomial or not. Okay. So in first one, first of all, remember or remind whatever the condition that expression should be polynomial, I written, and you also go through and return through that. For being polynomial, the expressions all terms variable having degree in whole numbers. So degree of variable means unknown, x, t, y, whatever may be, its degree must be in whole number. Whole number means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no negative number, no fraction. Okay, if all variables degree is given in whole number, means no root sign is there or no fractional degree is there, then we can say it is a polynomial. Okay, now look at first one. First term degree 2, second term degree 1, last term degree 0, because last term 7 means 7x raised to 0. So degrees are 2, 1, 0. So all are whole numbers. All degrees are whole numbers. We are talking about each and every term. That's why it is polynomial. So say yes, 4x square minus 3x plus 7 is a polynomial. Give reason. Same reason every time you have to repeat. Degrees are in whole numbers. Degrees are in whole number. That is the reason. If not, then give degrees are not in whole number. ओके, समझ गए? तो मतलब रूट नहीं होना चाहिए वेरिएबल ऊपर हो, नंबर ऊपर रूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेरिएबल मतलब अननोन के पर रूट नहीं होना चाहिए, वो खास हमारी कंडीशन है. अभी सेकंड देखो, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, तो यहाँ भी देखो वाई के ऊपर 2 डिग्री है और रूट 2 है ना, इसके साथ हमें कोई मतलब नहीं, पीछे वाई है इसके ऊपर 0 डिग्री है. समझ गए? अब तो यहाँ पे ये भी पॉलिनोमियल है सेकंड वन. वाई सेम रीजन, all degrees are whole numbers. All degrees या तो degrees of all terms are whole numbers. Degrees of all terms मतलब यहाँ कितनी टर्म है? 2 टर्म है, तो दोनों की होल नंबर में है. आप लास्ट जो टर्म है रूट 2, इसमें मत कंफ्यूज हो, बिकॉज रूट 2 तो कोएफिशिएंट है, पीछे y दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन y रेस टू 0 तो होता ही है. या तो ऐसा समझ लो ना, आपको जो सामने दिखाई दे रहे हैं जितना भी y या तो जितना भी x या तो जितने भी t, वो सारे की डिग्री इंटीजर में होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर या तो 0 में. ओके, तो सेकंड है, थर्ड नहीं है. थर्ड क्यों नहीं है? ऑब्वियसली देख लो, पहली टर्म देखो, t के ऊपर रूट है, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब हाफ डिग्री, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ डिग्री. ओके, तो आप समझ गए हाफ डिग्री तो नहीं है. दूसरी टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक भी टर्म अगर होल नंबर वाली डिग्री नहीं है तो हम नो बोलेंगे. तो थर्ड वन में आंसर आएगा नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल. रीजन में लिखोगे कि इन टर्म 3 रूट 2 डिग्री ऑफ टी इज 1/2. समझ गए? फर्स्ट टर्म की डिग्री 1/2 है. टर्म की डिग्री की बात करेंगे एक एक की, सारे की अगर ठीक है
सारे के ठीक है तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, वरना नहीं। एक की भी नहीं सूटेबल है तो नो। तो समझ गए आप, थर्ड का आंसर नो दिया। आंसर क्या दोगे? फर्स्ट टर्म हैविंग डिग्री 1/2। ओके, दैट्स वाई। नंबर 4, यहाँ आप थोड़ा जो अपॉन में वाई है ना, इसको ऊपर ले लो। आपको रूल पता है पावर एंड एक्सपोनेंट्स का। y के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री है मतलब 1 है, तो पहली टर्म में तो y⁻1 है। सेकंड टर्म में एक्चुअली अपॉन में 1 है ना, इसका मतलब क्या है, ऊपर ले लो ना y को, तो 2y⁻1 हो जाएगा। डिग्री माइनस हो जाएगी, आप ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर शिफ्ट करो ना, तो इसकी डिग्री ओनली नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव मतलब ऑपोजिट हो जाती है। तो यहाँ आपको पहले एक स्टेप बढ़ा दो, ठीक से लिखो इसको, y + 2y⁻1, एक स्टेप आगे बढ़ गया। अभी आप देखो सेकंड टर्म में -1 डिग्री है, तो नो। तो आंसर क्या दोगे? नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। रीजन, सेकंड टर्म हैविंग डिग्री -1, सेकंड टर्म हैविंग डिग्री -1। ओके, लाइकवाइज नंबर 5, x⁻10, y⁻3, t⁻50, यहाँ जितने भी हैं, लेकिन इसने ऊपर क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इन विच आर नॉट। तो हमारी दूसरी कंडीशन ये भी है कि वेरिएबल एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। समझ गए? तो ये दूसरी कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। देखो, दो कंडीशन अभी हमने पहले फॉर्म में तो सारी जगह एक ही बात हुई थी, क्योंकि सभी जगह x था तो x ही था, y था तो y था, t था तो t था, बाद में फिर से y आया। तो वहाँ डिग्री के हिसाब से हमने बोला, यहाँ डिग्री तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम दूसरा है, 3 वेरिएबल्स है, तो भी नो दो। आंसर नो देना है, क्यों? क्योंकि वो 1 वेरिएबल नहीं है। तो फिर से आंसर दो, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्लियर करना, नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ऊपर वाले 4 में भी ऐसे लिखो ना पूरा, गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, या तो गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पूरा स्टेटमेंट। यहाँ फिफ्थ में रीजन क्या दोगे? देयर आर 3 वेरिएबल्स। ओके, तो ऑब्वियसली वो नहीं है, वहाँ डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विथ वेरी बेसिक, आई डोंट थिंक एनी स्टूडेंट हैविंग प्रॉब्लम हियर। ओके, अगर आप ठीक से देखो ना तो आसानी से आंसर दे जाओगे। फिर भी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम करते हैं, गलत लिख देते हैं। ओके, नंबर के साथ मतलब नहीं है हमारा, अननोन के साथ मतलब है। अननोन की डिग्री मतलब x y, वो जो वेरिएबल हम जिसको बोलते हैं, इसकी डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए। और 4 नंबर जैसा क्वेश्चन है ना, फर्स्ट का 4, तो y को या तो x को जो भी अपॉन में है ना, इसको ऊपर ले लेना। नंबर अपॉन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिएबल न्यूमरेटर में ले लेना। सेकंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो कितना इजी है, आप पहले में बोल सकोगे। फर्स्ट में 2 है, सॉरी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब समझिए, आगे x² के आगे मल्टीप्लिकेशन में क्या है, तो फर्स्ट में देखो x² के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो सेकंड का फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, वेरी इजी। सेकंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। थर्ड, कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। जो भी आपको दिया है वो सारा कोफिशिएंट, पाई है जो भी है। एंड फोर्थ, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। क्यों 0? वहाँ x² वाली टर्म ही नहीं है। x² वाली टर्म है तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि x वाली टर्म तो है नहीं, आप क्यों पूछ रहे हो? वहाँ ऐसे लिखो x² कोफिशिएंट, या तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। समझ गए? नहीं है तो इसका मतलब कोफिशिएंट 0 है। तो फोर्थ को ऐसे आंसर दोगे आप ऐसे। कभी कभी तो स्टूडेंट एग्जाम में हमें बुलाते हैं स्टाफ रूम में से कि सर यहाँ देखो यहाँ दौड़ के आओ, और इतनी इमरजेंसी कर देते हैं कि जैसे पहाड़ टूट गया हो कोई, या तो आग टूट के नीचे गिर गया हो। सर यहाँ x² की बात कर रहे हो, x² तो दिखाई दे रहा है। भाई x² दिखाई दे रहा है, तुझे नहीं दिख रहा है। वो शंकर भगवान महादेव की तरह तीजा नेत्र खोलना पड़ता है। अगर थर्ड नेत्र आप खोलो तो आपको x² दिखाई देगा 4 में भी, जिसके आगे कोएफिशिएंट होगा 0। समझ गए? तो आपको ત્રીજા नेत्र खोलना पड़ेगा। ત્રીજો नेत्र હોય ને શંકર ભગવાનને, એવું તમારે ખોલવું પડે ભાઈ, બરાબર? ત્યારે દેખાય। हाँ, 3, गिव 1 एग्जाम्पल इच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। इतना ही देखो ना अभी आधा।
बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो मतलब कोई भी एक्स वाली ले लो, वाई वाली ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन डिग्री 35 होना चाहिए। तो मान लो x⁵35, लेकिन और एक टर्म बढ़ा दो, क्योंकि बाइनोमियल है। बाइनोमियल का मतलब समझते हो ना, दो टर्म होनी चाहिए। तो मैं लिख दूँ x⁵35 + 2, ऑब्वियसली सिंपल। या तो x⁵35 के आगे कोई नंबर लगाना है तो लगा दो। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, लैक्स ऑफ आंसर हो जाता है। सो मैं आंसर दे रहा हूँ x⁵35 + 2, या तो x⁵35 - 1, x⁵35 + x⁵34 भी लिख सकते हो, लेकिन 35 से ज़्यादा डिग्री नहीं होनी चाहिए। समझ गए? तो इसमें कोई फिक्स आंसर नहीं है, लेकिन डिग्री 35 रखनी है और दो टर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक ही टर्म, कोई बात नहीं, x⁵100, या तो 5x⁵100, 10x⁵100, -6x⁵100, लेकिन x⁵100 होना चाहिए। और एक ही टर्म, मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म, प्लस माइनस में साथ में कुछ होना चाहिए। नहीं तो थर्ड में मैंने आंसर दिया और रिपीट कर रहा हूँ। पहले 35 वाले में दिया x⁵35 + 2, सेकंड में दिया x⁵100, या तो आगे लगा दो जो भी आपको लगाना है। आपका रोल नंबर लगाना है तो रोल नंबर लगा दो, आपको मार्क्स मिला है वो लगाना है तो वो लगा दो। ओके, जो भी लगाना है वो लगा दो। नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ जो पॉलिनोमियल है, जितनी भी डिग्री है ना, सारे की, सॉरी जितने भी टर्म है वो सारे की डिग्री आपको देनी है। तो फर्स्ट में 3 टर्म है तो तीनों की डिग्री दे दो। देखो आपको कैसे लिखोगे, कैसे इसे लिखना, डिग्री ऑफ 5x³ इज 3, डिग्री ऑफ 4x² इज 2, डिग्री ऑफ 7x इज 1। समझ गए? x के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ भी आप थर्ड आई निकालो ना, थर्ड आई को ओपन करो। ओके, तीसरा नेत्र ओपन करो तो x के ऊपर 1 दिखाई देगा आपको, 7x⁻1, कुछ नहीं है, मतलब 1 डिग्री होती है ऊपर। और यहाँ भी आपको वो नेत्र खोलना पड़ेगा। सेकंड में देखो 4 के पीछे आपको अभी 2 आँख से नहीं दिखाई दे रहेगा, तीसरी आँख खोलो तो दिखाई देगा 4y⁻0। किस किस को दिखाई दे रहा है? कोई सुन के मुझे अभी तो नहीं बता सकते हो क्योंकि लाइव नहीं है हम, लेकिन दिखाई दे रहा है। और तीसरी आंख जिसने खोली है इसको दिखेगा 4y⁻0 और बाद में -y²। तो ऑब्वियसली लिखना, डिग्री ऑफ 4 इज 0, डिग्री ऑफ -y² इज 2। टर्म पूरी माइनस है, लिखना साइन के साथ टर्म लिखना। सो टर्म ऑफ 4 इज, सॉरी, डिग्री ऑफ 4 इज 0, डिग्री ऑफ -y² इज 2। ओके, कोएफिशिएंट मत काउंट करना, डिग्री ऊपर होती है, कोएफिशिएंट नीचे होता है। हाँ, नंबर 3, डिग्री ऑफ 5t इज 1, क्योंकि t के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके लिए भी मैंने बोला ऐसे। और -7, सॉरी -√7, तो इसकी डिग्री 0, नंबर की डिग्री 0 ही होती है। तो डिग्री ऑफ 5t 1, डिग्री ऑफ -√7 0। आप बोले सर अब सॉल्यूशन नहीं दिया, लेकिन इसमें सॉल्यूशन देने जैसा कुछ है ही नहीं, जस्ट मुझे केयरफुली लिसन करो, आप सीधा आंसर ही देना है। और फिर फोर्थ में डिग्री ऑफ 3 इज 0। ओके, नाउ नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको पता है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखना है पहले। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक एंड 3 है तो क्यूबिक। ऐसा है तो मैं, आपने जो लिखा है ना फेयर बुक, वो भी साथ में रखना सामने। इसमें मैंने क्लासिफिकेशन दिया है। क्लासिफिकेशन मैंने 2 टाइप से दिया था, टर्म वाइज एंड डिग्री वाइज। अगर टर्म वाइज 1 डिग्री है तो मोनोमियल, सॉरी 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, ऐसा हमने बोला था। और बाद में हमने डिग्री वाइज, डिग्री को कंसीडर करके क्लासीफाई किया था। इसमें ऐसा लिखा था कि 1 डिग्री है तो लीनियर, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है तो क्यूबिक। और मैंने एक स्टेप आगे भी बढ़ा था, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं था, 4 डिग्री है तो बाई क्वाड्रेटिक। ओके, अभी देखो 5 का फर्स्ट डिग्री 2 है। आप बोले सर 2 क्यों? क्योंकि सबसे बिगेस्ट है ना, इसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखो फर्स्ट टर्म की 2, दूसरे टर्म की 1, तो पूरी पॉलिनोमियल की कितनी हुई? 2। समझ गए? तो क्वाड्रेटिक, फर्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप सीधा आंसर ही देना, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या तो x² + x इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड में देखो x - x³, फर्स्ट टर्म की 1, सेकंड टर्म की 3, तो पॉलिनोमियल 3 हुई।
पॉलिनोमियल की डिग्री जो बिगर है ना या तो बिगेस्ट है ना वो पॉलिनोमियल की काउंट की जाती है. सो सेकंड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. नाउ मैं सीधा बोल दूँ, थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. समझ गए क्यूब, देखो हाईएस्ट डिग्री 2 है. फोर्थ लीनियर, क्यू हाईएस्ट डिग्री 1 है, एक्स के ऊपर 1 है. देखो तो फर्स्ट टर्म की डिग्री 0 है, सेकंड की 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1. सो 4 में आएगा लीनियर, 5 भी लीनियर, 6 क्वाड्रेटिक एंड लास्ट 7 क्यूबिक. देखो है कुछ प्रॉब्लम इसमें? बहुत सिंपल है. अभी एक्सरसाइज 2.2 मैंने क्वेश्चन भी यहाँ लिखा है, वो सीधा टेक्स्ट बुक निकालने की ज़रूरत नहीं, फिर भी आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ओपन करो. एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0, x equal to -1 and x equal to 2. ओके, तो आपको करना कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है. ये पर्टिकुलर वैल्यू रख के इसकी जगह आपको x हटा के ब्लैंक ब्रैकेट बना के वो वैल्यू रखनी है, बाद में ब्रैकेट ओपन होगा. समझ गए? तो देखो मैंने फर्स्ट किया है 5x इक्वल टू, एवरी टाइम पॉलिनोमियल पहले लिख देना हो बार बार, 5x minus 4x square plus 3. P of x is nothing but a polynomial on x. तो पोलिनोमियल का एक सिंबल है, आपको बार बार ये लिखना है. अगर अंदर वो x की जगह y होता है ना तो लिखना P of y. ओके, अभी देखो इसने P of 0 मांगा है, क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0. तो जहाँ पर x है वहाँ पहले ब्लैंक ब्रैकेट बना दो. ब्लैंक ब्रैकेट बना के अंदर 0 को बिठा दो. बिठाया, बाद में सिंप्लीफाई करो तो पहले तो 5 0 0, और बाद में मैंने ब्रैकेट पहले नहीं ओपन किया, मैंने 0 2 किया, क्योंकि बोर्डमास का रूल है ना, बोर्डमास का रूल है बी फॉर ब्रैकेट. ब्रैकेट मतलब वो अलग बात, हमने पहले बेसिक किया था. ये डी मतलब डिग्री. बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे टीचर भी इसको बोलते हैं ब्रैकेट ऑफ. एक्चुअली वो ब्रैकेट ऑफ नहीं है, ओ फॉर ऑफ नहीं है, ओ फॉर ऑर्डर है. ओ फॉर ऑर्डर है. आप कोई भी टीचर को पूछोगे तो भी 50% स्टूडेंट टीचर भी ऐसे बोलेंगे कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म बोलो तो बोलेंगे ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ऐसा नहीं है. ब्रैकेट बाद में ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब डिग्री, तो बाद में आपको तुरंत डिग्री करनी है. और ब्रैकेट मतलब यहाँ हमें ब्रैकेट ओपन करना, वो डिग्री नहीं. हम ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. वो ब्रैकेट का मतलब डिफरेंट ही है. ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो सिंप्लीफाई करना पहले, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के अंदर तो एक ही बात है, अंदर 2-3 टर्म थोड़ी है ब्रैकेट के अंदर, वरना ये भी ब्रैकेट का मतलब होता है. तो पहले डिग्री करो, तो 0 मैंने 0 किया. देखो आपको ब्रैकेट ओपन करने की जल्दी नहीं है, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन है. मल्टीप्लिकेशन का टर्न बाद में है, पहले डिग्री का टर्न है. ओके, तो बाद में मैंने 0 0 लिखा. देखो नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप बढ़ा दिया, बाद में वो 4 0 0 हो गया, तो 0 - 0 + 3 3. तो समझ गए, जब ऐसा होता है ना, आपको 0 अंदर डालना होता है ना पॉलिनोमियल के अंदर, तब कांस्टेंट टर्म ही आंसर आती है. देखो कांस्टेंट टर्म में 3 है, पहले से देख लो, एक्स वाली टर्म निकल जाती है, वेरिएबल निकल जाता है, तो ओनली 3 है, तो आप पहले से ओरली भी आंसर दे सकते हैं. मान लो को MCQ में पूछा गया तो MCQ में आप ये आंसर दे सकते हैं सीधा. ओके, तो ये हुआ 0 - 0 + 3 3. ऐसे नेक्स्ट देखो, इसने -1 भी बोला था ना, 3 आंसर रखना है अंदर. तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x⁻⁻1 भी फाइंड करना, मतलब p⁻⁻1 फाइंड करना है. तो मैंने देखो पहले स्टेप में पहले तो पॉलिनोमियल बार बार लिखो, ब्रैकेट बनाओ, किसकी जगह, x की जगह x को निकाल दो, -1 को बिठा दो, बिठा दिया. पहला ब्रैकेट तो ओपन हो गया क्योंकि ऊपर डिग्री है नहीं. सेकंड में अभी ओपन नहीं करूँगा, -1 + 1 हो गया. देखो क्यों हो गया पता है ना, बेसिक. -1 × -1 + 1. ओके, थर्ड टर्म तो 3 को ऐसे रख के जाओ. तो वो ब्रैकेट एक जो बाकी रहा था वो भी मैंने नेक्स्ट स्टेप में खोला, तो -5 - 4 + 3. हम बाद में ऐसे समय पहले बेसिक में सीखे थे, पता है ना, सेम साइन वाले को कंबाइन करो. बोर्ड मास में जो ये होता है ना, ये का मतलब ये है एडिशन. एडिशन का मतलब समझते हो, सेम साइन वाले जितने भी टर्म्स हैं ना सारे को कंबाइन करना, वो एडिशन. अब प्राइमरी सेकेंडरी में बोलते हैं 5 + 3, इसको एडिशन क्यों बोलते थे पता है, 5b + 3b+, इसलिए आप इसको एडिशन बोलते हैं. और ऑपोजिट साइन वाले को कंबाइन करो तो इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं. आप
प्राइमरी में बोलते थे ना 10 माइनस टू 8, इसको सब्ट्रैक्शन क्यों बोलते थे? 10 प्लस था, 3 माइनस था, इसलिए, या तो 2 माइनस था। तो समझ गया? यहाँ थोड़ी वाइड डेफिनेशन समझ लेना, बीच की साइन नहीं देखना, दोनों की साइन देखनी है। तो यहाँ -5 -4 -9, वहाँ माइनस माइनस प्लस 9 मत करना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन के लिए नहीं है। ओके, आगे जो साइन लगाता है ना वो साइन की बात नहीं है, यहाँ तो सेम साइन है, तो एडिशन करके साइन को रखना है, बिगर की साइन रखना है। सो -9 + 3 -6 क्यों हुआ? ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, लास्ट में बिगर की साइन देखो, तो ऑपोजिट साइन है, मैंने डिफरेंस लिया और बिगर की साइन रख दी, -6 आंसर आया। ये सारी बात तो बेसिक हैं, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है वैकेशन में, आपके पास होगी भी ठीक से। इसको बनाकर फेयर बुक में लिखने के लिए भी मैंने, फेयर बुक में नहीं लेकिन एक अलग बुक में लिखने के लिए भी मैंने बोला था। ओके, वो बहुत काम का भी है, आगे हमने बहुत इसका गुणगान गाया है। ओके, तो थोड़ा याद भी रखना, भूल मत जाना। थर्ड होमवर्क में है, आपको क्या रखना है? 2, सिंपल है, माइनस नंबर भी वाला, माइनस साइन भी नहीं है। ओके, तो इसका थर्ड होमवर्क में है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। एक एक सम में 3 कैलकुलेशन करनी है, पहले 0 रखो, बाद में 1 रखो, बाद में 2 रखो, आगे की तरफ। आगे -1 था, यहाँ हम 1 ले लिए। तो पहले इसने दिया है y² - y + 1, इसको P ऑफ y मैंने लिखा, समझ में आया? P ऑफ x नहीं, क्योंकि वेरिएबल y है, तो मैंने P ऑफ 0 रखा। सारी जगह y को हटा के ब्लैंक ब्रैकेट बना के, ब्रैकेट कंपल्सरी हो, डोंट फॉरगेट टू मेक और फॉर्म ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर मेकिंग ब्रैकेट ओनली प्लेस 0 इनसाइड। मैं पहले से 0 नहीं लिखा हुआ है, मैंने पहले ब्लैंक ब्रैकेट बना दिया है, वरना आप ऊपर का स्क्वायर या आगे का 2 3 नंबर या ऐसा कुछ भूल जाते हो। सारा रख दिया, 0 - 0 + 1 1। मैंने आगे बोला था कि आप सब भी 0 रखेंगे तो कांस्टेंट टर्म ही आंसर आएगा। P ऑफ 1 में भी देखो मैंने क्या किया, ब्रैकेट बना के 1 रखा, ब्रैकेट सीधा ओपन हो गया, 1 - 1 + 1 + 1 - 1 कैंसिल करके 1 आंसर आया। तो यहाँ भी आप सीधा आंसर दे सकते हो। देखो आप P ऑफ 1 जब करते हो ना, सारा कोएफिशिएंट ही रहता है। देखो सेकंड लास्ट स्टेप देखो, 1 - 1 1। अभी पॉलिनोमियल देखो, फर्स्ट का कोएफिशिएंट 1, सेकंड का कोएफिशिएंट -1 एंड थर्ड 1। तो जब आप P ऑफ 1 करते हैं ना तो सारा कोएफिशिएंट, और P ऑफ 0 करते हैं तब कांस्टेंट टर्म। ओके, ऐसे भी याद रख सकते हो शॉर्टकट, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप मेन बात सीख लो तो ऐसा सब कोई एक्स्ट्रा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी मैंने 2 रखा है, कैसे रखा है आपको पता है, 2⁴ 4 -2 + 1। तो पहले मैंने सेम साइन वाले को कंबाइन कर दिया, +4 + 1 + 5 बन गया, 5 - 2 3 बन गया। ओके, तो तीनों सम मैंने किया है फर्स्ट। अभी ऐसे और भी है, 5 का 2, वहाँ कुछ थोड़ा लंबा सा दिया है, 2 + t + 2t² - t³। यहाँ भी आंसर तो 2 ही आएगा, कांस्टेंट टर्म। पहले 0 रखा, ब्रैकेट हटा दिया, सॉरी ब्रैकेट करके t को हटा के 0 रख दिया। एक वो 0⁻², 0 मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, क्योंकि पहले ब्रैकेट वहाँ मैं नहीं ओपन करूँगा। जब डिग्री है ना तब पहले ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट ओपन होगा लेकिन आगे कोएफिशिएंट नहीं होगा। तो देखो t³ है, तो वहाँ आगे मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं था, तो वहाँ ओपन कर दिया। लेकिन यहाँ क्या था, डिग्री भी है, कोएफिशिएंट भी है, तो पहले डिग्री को प्रायोरिटी दो। तो मैंने डिग्री कर दी 0⁻² 2। ओके, सॉरी 0⁻² 0। बस बाद में ब्रैकेट ओपन करो तो 2 + 0 - 0 2 आंसर ऑब्वियसली। ऐसे ही बाद में 1 रखा, टी की जगह ब्लैंक ब्रैकेट बना के बाद में 1 रख के आगे बढ़ा हूँ। वहाँ भी देखो ब्रैकेट तो बाद में मैंने तुरंत ही ओपन कर दिया, लेकिन एक 1⁻², 1 का स्क्वायर था ना, तो पहले 1⁻² 1 किया, बाद में नेक्स्ट स्टेप में, मतलब इसकी वजह से एक स्टेप और बढ़ गया। यहाँ भी 1 - 1 कट हुआ, 2 + 2 4 हुआ, बाद में मैंने 2 रखा, सारी जगह ब्लैंक ब्रैकेट बनाया, 2 रखा, आगे बढ़ा। तो वहाँ भी ब्रैकेट सारा ओपन कर दिया था, लेकिन एक थर्ड टर्म जो है ना 2t², इसमें मैंने पहले 2⁻² कर दिया। ओके, तो 2 4 = 8, तो 8 - 8 कट हो गया, 2 + 2 4। तो समझिए बहुत सिंपल है, जस्ट आपको ब्लैंक ब्रैकेट बनाना, अंदर दी गई वैल्यू रखना, बाद में पहले डिग्री है तो डिग्री कर लो, बाद में और कुछ नहीं है तो ब्रैकेट ओपन कर दो, बाद में अकॉर्डिंग टू अवर रूल पहले एडिशन करो, बाद में सब्ट्रैक्शन करो, वो सब रूल आपको पता है।
इसका थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क में है, एक आगे दिया है। इसका थर्ड एंड फोर्थ मतलब थर्ड में भी 3 सम है, फोर्थ में भी 3 सम है, तो कुल मिला के आपको 3 + 3 6 और एक आगे का 7 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत सिंपल, वेरी वेरी शॉर्ट, 2-3 लाइन का आंसर। ओके, तो कुल मिला के आपको 10 या 15 मिनट का काम है, और वीडियो भी आज हम शॉर्ट रखेंगे। ओके, इतना ही करेंगे। आगे का थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, कॉम्प्लिकेट मतलब थोड़ा नया है, जो हम ये स्क्रीन रिकॉर्ड में नहीं करेंगे, वो हम लाइव बोर्ड पर करेंगे। ओके, तो आई होप ये तो आप समझ ही जाओगे। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा अप्रोच कर सकते हो, और होमवर्क भी अभी कर देना। ओके, थैंक यू।